and good morning to all. And class 10, chapter 1, lecture 1B. The topic is the resource classification. Yesterday we have to write down the names of the different objects and we have to group them. Grouping is necessary for the better understanding. On this we have to classify the resources on the different bases and their uses, etc. So first of all, the first division is on the basis of origin. Origin means होता है कि on their birth this should be classified. तो इसके हमारे टू ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. फर्स्ट हमारा आता है बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकंड एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक मीन्स all the resources is available in our nature, like the animals, plants, human beings, minute bacteria, fungi, algae, etc. They are called the biotic resources. Second हमारा abiotic resources. Abiotic मतलब non living components of our nature are called the abiotic resources. जिसमें कि हमारे क्या rocks, mountains, plateaus, plains, rivers, etc. The non-living components is belong to the abiotic resources. But there are two or subdivisions all given in the books. But NCERT following the only two divisions, biotic and the abiotic. So we are discussing the third. This called the forest-based resources. Forest means the resources which we obtain from the forest. They are called the forest resources. The third division, not given in your book. Maybe the living or maybe the non-living. Means the product we are getting the forest, they are called as non-living, like rubber, coffee, tea, etc. And next is marine resources. Marine means resources based on the sea. The things we have to get the sea, like the salt, bromine, different type of marine life, like fish and other animals. They are from the sea. They are called the marine-based resources. And second category हमारी आती है on the basis of exhaustibility. Exhaustibility means according to use. तो simple way हम कहें कि they are called renewable resources. And second is the non-renewable resources. Any first category is resources which can be used again and again and again. They are called renewable resources. Like the solar energy, wind energy, and tidal
etc., they will never come to an end. जितना चाहे हम इस्तेमाल करें उसे they will recycle again and again. They call the renewable resources. सेकंड हमारा नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम एक बार यूज करें और दिस विल बी कम टू एन एंड, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, लाइक द फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम and so many things can be used and will come to an end. This is called a non-renewable resources. इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और जो इंपॉर्टेंट हमारा आता है वो आता है नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4. On the basis of ownership, यानी who is the owner or the head of the resources. तो यहां हमारा आता है, इससे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल और द पर्सनल रिसोर्सेस. तो यहां हमारा आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस और द पर्सनल रिसोर्सेस. द रिसोर्सेस और द थिंग्स which are belong to a single person, this called a personal resources. जैसे कि property of a person, like the houses, buildings, जैसे कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिस द पर्सनल रिसोर्स. ऐसे कॉलेजेस आते हैं, रन बाय द गवर्नमेंट, रन बाय ए कम्युनिटी और रन बाय ए सिंगल पर्सन. जैसे सेंट थॉमस, किरण सोजिया, स्वीटी, सेंट मैरी, दे आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल और द पर्सनल रिसोर्सेस. And rights belong to a single person, and rules and regulations made for these resources are according to the person who owns this property. सेकंड हमारा आता है इसमें community resources. Community means a particular group occupying the resources. कि पूरी जो रिसोर्सेस पर एक कमिटी जो है होल्ड की है, उसे कहते हैं पर्सनल फॉर ए कम्युनिटी रिसोर्सेस. जैसे कि ए इंस्टीट्यूट रन बाय ए कमिटी, बिफोर 20 years एक कॉमन ट्रेडिशन था, धर्मशाला चलती थी. तो जहां क्या होता है, पर्सनल कमेटी जो है उनको रन करती थी. जैसे मैसूर धर्मशाला है, राठौर धर्मशाला है या और भी है. तो वहां क्या होता है कि उस कमेटी को प्रायोरिटी मिलती है, अगर खाली होगी तो और किसी को भी वो उसे यूज कर सकता है. ऐसे ही क्या होता है हमारे कब्रिस्तान. तो वहां क्या होता है, पर्टिकुलर कमेटी है वही अपनी डेड बॉडीज को लेके जाती है. चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, उनकी कब्रिस्तान अलग है. मुस्लिम्स हैं, उनके कब्रिस्तान अलग है. क्रिश्चियंस, उनके भी अलग है. तो यहां कोई एक दूसरे को इंटरफियर नहीं कर रहा है. यानी कि मतलब क्या हुआ कि दे आर बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन. ऐसे ही क्या तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं,
वो चलते हैं कम्युनिटी बेस्ड, जैसे CRV स्कूल, नॉट बिलोंग टू सिंगल पर्सन, दिस बिलोंग टू द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी बिलोंग करता है। तो ये हमारे कैसे हुए, ये होगी हमारी कम्युनिटी रिसोर्सेस। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल रिसोर्सेस, मीन्स रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। ये क्या होंगे, यानी कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, क्या कम्युनिटी रिसोर्सेस हो, और इसे हम सिंपल लैंग्वेज कहते हैं पब्लिक रिसोर्सेस, पब्लिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज विद द कंट्री है बिलोंग टू दी नेशनल प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी भी है और ये हमारे नेशन की भी प्रॉपर्टी है। जैसे सोर्स ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम क्या है, एक तो हमारी इनकम, दूसरी हमारी कंट्री की भी इनकम है। ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी जो है, हमारा मकान है, हमारा है, हमारी संसद क्या होता है कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेशन। जैसे कि कभी कभी ऐसे टाइम आते हैं गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्राइवेट रिसोर्सेस है उनको कन्वर्ट करती है किसमें, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम के लिए एज ए नेशनल रिसोर्सेस। जैसे जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मे बी द व्हीकल्स, मे बी द बिल्डिंग्स ऑफ ए स्कूल्स, तो गवर्नमेंट सबको ऑक्युपाई कर लेती है कि दिस बिकेम द नेशनल प्रॉपर्टी फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। अब यहां इस प्रॉपर्टी आपका अधिकार कुछ दिन के लिए खत्म होता है, यहां इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट यूज करेगी, तो दिस बिकेम द नेशनल प्रॉपर्टी। जो हमारे पास है, हमारा भी है और हमारे कंट्री का भी है। ऐसे हमारे क्या है, जैसे कि यहां हम बात करते हैं जैसे कि इंडिया की जो हमारी स्टेप आती है, एक तो ऑन द लैंड रिसोर्सेस, जो भी चीजें हमारे पास हैं हमारी भी है और कंट्री की भी है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है, पेड़ है, हम नहीं काट सकते भले ही हमने लगाया हो, वो कब यूज कर सकते हैं, जब वो सूख जाए तो आप उसका यूज कर सकते हैं। लगाना आपका काम है, प्रोटेक्शन आपका काम है, लेकिन काटना आपका काम नहीं है। ऐसे क्या होता है, जो हमारे ये कोस्टल एरिया आता है, गुजरात टू वेस्ट बंगाल, दिस अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो यहां से क्या होगा कि ये जो हमारी बाउंड्री है अप टू 19.5 किलोमीटर टू 21.5 किलोमीटर, कि ये जो एरिया हमारे पास आया 21 किलोमीटर तक का, इसे ही हम यूज कर सकते हैं। चाहे इस एरिया में फिशिंग करते हैं, टूरिज्म सेक्टर डेवलप करते हैं, अपने शिप एंकर करें, सी पोर्ट बनाए, कुछ भी करें, दिस आर प्रॉपर्टी ऑफ अवर कंट्री, कि इस एरिया में अपना हम कोई भी काम, शिप खड़े कर सकते हैं, चाहे फिशिंग करें, कुछ भी करें, दिस इज माई प्रॉपर्टी। यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ नेशन होगी। इसके आगे हम इसका यूज नहीं कर सकते। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स दिस ऑल्सो बिलोंग टू द ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हम कहेंगे सारा इंडियन ओशन हमारा हो गया, नहीं हो गया। ओनली अप टू 12 नॉटिकल माइल्स और मे बी द 19.5 टू 21.5 किलोमीटर तक का एरिया ही हम यूज कर सकते हैं। इसके आगे आप शिप खड़ा करेंगे
तो ये आपकी परमिशन नहीं होगी। ओनली अपने एरिया में विदाउट टेकिंग परमिशन दिस यूज फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है international resources. The resources which are belonging to the all, यानी अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया हमारा था, इसके ऊपर जो एरिया आएगा, जैसे कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, आर्टिक ओशियंस है, अटलांटिक ओशियंस है, इंडियन ओशियंस है, तो ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंग टू दी ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, they can be used by with the permission of the recommended by the WTO, UNO, etc. तो इनको जो सरकारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली फॉर ए पीसफुल मैनर, कि हम चाहे यहां पर अपना एटॉमिक वेपन्स हैं या मिसाइल्स हैं वो टेस्टिंग करें, इसकी परमिशन हमें नहीं मिलेगी। दे विल यूज फॉर द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एक्सेट्रा, जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को बिना पॉल्यूट किए हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड चैप्टर विल कंटिन्यू 1C, sorry, lecture continue 1C, 1 part is left. This will be in the next video. So watching this video and stay home, safe home. Thank you.